Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss first of all the logic circuits. So up till now we have covered the different types of K maps, right? Their implementations and whatever we have implemented that is with the help of some gates. So today we'll see what is logic circuits and what it includes. So logic circuits in general are of two types. One is combination circuit, one is sequential circuit. So in combination circuits, we're having a input variables, logic gates, and some output variables, right? And in the case of combination circuit, its output depends upon only on the current inputs and has no feedback loops from the output input. So I hope you all know what is the meaning of feedback. Feedback means from output we are getting to the input. Suppose I'm having a circuitry, right? And whatever I am feeding from this side, I am getting output from this side. If I apply from this side to input, this is referred to as feedback, right? So what we are saying that in combination circuit, there is no feedback. Means we are simply giving the input from this side and taking output from this side. There is no connection from output to input, right? And in combination circuit, we are saying that the output depends upon the current inputs. Means what is the status of current input? Accordingly, we get the output. Like if you remember, we have done the different types of gates. So we know the truth table of gates. Suppose AND gate. So if I talk about AND gate only, so we say if both the inputs are high, only then the output is supposed to be high. So it means this is a type of a combination circuit where the output depends upon the current input. So depending upon the current input, if it is 1, it is 1. If it is 0, anyone is 0, or it is 1, output is supposed to be 0. So this is the meaning of this definition, right? Then this is a simple block representation. For a combination circuit, we are having n inputs from x0 to xn, and we can have n different outputs. And this is a circuit implementation where we are using a set of basic gates, right, to implement a particular function. We're not saying what is the output of this function, just to give you example that whatever the circuits we have implemented till now, they all are a part of a combination circuits where we have used the basic gates or the universal gates. Basic gates आपके कौन से हैं? And, or, and not, right? और universal gates कौन से थे? हमने किए थे NAND and NOR. So जो भी हमने सर्किट बनाया किसी भी गेट का अभी तक जितना हमने पढ़ा है, they all are belong to the category of combinational circuits, right? So block diagram of combination circuit with n inputs and I output variable is depicted in this diagram, right? For n input variables, there are 2 raised to power n possible combinations. ये भी हमें पता है कि जैसे हमने कहा था ट्रुथ टेबल में अगर 3 inputs हैं तो आपके पास 2 raised to 3 8 combinations बनेंगे. So likewise for n input in general, there are 2 raised to power n possible combinations, and for each of which there is one possible output. So combination circuit can be expressed in the form of a truth table. तो हमने जितने भी सर्किट बनाए थे हमने कहा था ना कि पहले उसका truth table draw करो. So that all belongs to combination circuits. While if we talk about the sequential circuit, this sequential circuit employs a storage element along with the logic gates. Storage का मतलब क्या है यहाँ पर? जैसे हम कहते हैं कि हमने कुछ टास्क परफॉर्म किया and we got some output. We need to store this output for further use. So storage element wherever is required, it is a type of a sequential circuit. And in addition to the logic gates, their output depends not only on the present input but also on the past sequence of inputs. तो जैसे मैंने कहा कि मान लो मैंने पहले इनपुट लगाई 0 0. लेट्स टेक एग्जांपल. सपोज मेरी इनपुट थी पहले a and b. I am giving 0 0 input and let's say I am getting output as y1, suppose. Now this we write for the case of a combination circuit, but for the case of sequential circuit we need to check on the current inputs. Let's suppose my current input is 1 0. Now if this is my current input, I need to know what was my previous input. So for that we need to have some storage element incorporated with the sequential circuits. So always remember, for a sequential circuit we do require a storage element in addition to the logic gates, and the output depends not only on the inputs, present input, but also on the past sequence of inputs. Now see, sometimes different systems use different codes for representing same discrete elements of information.
So to achieve the integration of such systems, we use dissimilar codes. We follow code conversion logic. मींस आप जैसे हमने कहा ना कि मान लो आपने एक ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज किया या आपने कोई डिफरेंट नंबर सिस्टम यूज किया, तो हमने कहा कि एक अगर स्टैंडर्ड बनाना तो वी हैव टू हैव अ कोड कन्वर्जन लॉजिक to be deployed so that we can have the integration of all the systems which are having dissimilar code. So thus we need a code conversion circuit which makes the two systems compatible. For example, मैं बोलता हूँ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ यहाँ पर, राइट, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली मान लो एक बंदा फ्रेंच समझ रहा है, तो उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा उस लैंग्वेज में. So likewise for the codes also, if I say there are different varieties of codes, we need to understand what this code represents. So we need to have a code converter. एक से दूसरे कोड में जाने का हमारा रास्ता होना चाहिए. जैसे हमने किया था ना बाइनरी कोड, ग्रे कोड, if you remember, बाइनरी टू ग्रे किया था, ग्रे टू बाइनरी किया था. So we need to have a code conversion circuit which makes the both the side of the systems compatible. So though each may be used different binary code of independent operations. So we'll see today different code converters. So for example, we want to convert a binary code, कोई भी binary code है ABC, A number, to binary code B. So the input lines must supply the bit combination as specified by the code A. Code A refers to the first code, right? And the output line must generate the corresponding bit combination of code B. It means आपके पास क्या है, एक आपके पास सीक्वेंस है कोड A की, दूसरी तरफ आपके पास क्या है, कोड B. Means I am having code A and let's say this is code B. So whatever the input, it is as per the code A. Whatever the output, it is as per the code B. So we need to have a converter which converts the corresponding input of A to corresponding output of B. So जैसे हमने देखा था ना कि हमने कहा था कि आपका ये मान लो बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी को आप कन्वर्ट करो इनटू ऑक्टल नंबर सिस्टम है, तो हमने ऑक्टल किया था, ऑक्टल से डेसिमल किया था, राइट. सो इट मींस वी आर कन्वर्टिंग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो दैट्स लाइक अ कोड कन्वर्टर्स. So here we're writing the BCD code. Suppose we know for BCD code it's from 0 to 9, है ना? So for BCD code, if you are given, if somebody asks you to generate the access3 code, so what is the meaning of access3 code? Anybody? So 0 को 3 की तरह लिख देंगे. बिल्कुल. तो access3 का मतलब क्या है कि जो 3 उससे ज्यादा हो, तो जो भी नंबर आपको BCD गिवन है उसमें +3 कर दो बस. तो 0 का 3 आ जाएगा, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 8 and so on. So 3 का 6, not 8. So let me show you the table, complete table. See this table now. कोई भी आप इनपुट डालो, मान लो आपकी ये इनपुट है, सपोज करो ये कितनी है, 0110. इट मींस नंबर इज 6, है ना? तो 6 में 3 ऐड करो कितना आएगा, 9. सो दिस इज 9. सो जब भी हमने कोड कन्वर्जन करनी है, ये हमारा कोड कन्वर्जन जो आपको मैंने टेबल दिया है, ये किसका टेबल है, BCD से access3 कोड करना. तो you all know BCD code, which is a 4-bit code, and in BCD code it start from 0 and up to 9. 10 to 15 यहाँ पर कोई है ही नहीं स्टेट, राइट. तो अब इसका access3 लिखना है, तो हर एक में 3 ऐड कर दो, तो 0 का 3 होगा और 9 का फॉलोड विद 12 होगा. सो जस्ट राइट द कोड फॉर दैट. ये क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट इसमें कोई? क्योंकि जितने भी हमारे ये कोड कन्वर्टर्स होते हैं, आपको सिर्फ चाहिए क्या, यू हैव टू मेक द ट्रुथ टेबल करेक्ट फर्स्ट. वंस ट्रुथ टेबल इज डन, रेस्ट एवरीथिंग विल बी करेक्ट. ये ट्रुथ टेबल क्लियर है? किसी को डाउट बच्चे को बताओ मुझे. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन द ट्रुथ टेबल? क्लियर? बोलो भाई, 53 बच्चे बैठे हैं, आवाज किसी की भी नहीं आ रही. यस सर. ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब मुझे उसको इंप्लीमेंट करना है. करो हेल्प मेरी, कैसे करेंगे इंप्लीमेंट इसको? बोलो. इसमें आउटपुट कितनी है हमारी, देखो आउटपुट कितने बिट है, बताओ मुझे कितने बिट्स है आउटपुट के ऊपर? 4. तो हमारे पास 4 आउटपुट बिट्स है और इनपुट बिट्स कितनी है, बोलो. 4 4 इनपुट बिट्स. 4.
राइट तो इसका मतलब 4 इनपुट बिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे 2⁴ दैट इज सर इक्वल टू 16 है ना। 16 तो इट मींस 16 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास। इतनी बात सबको क्लियर है। अब मेरे पास आउटपुट में 4 आ रहे यस हैं, 4 बिट्स आ रही है, एक w x y z, so I will take w separately, x separately, y separately, z separately. It means I will have 4 different functions. Okay, w in terms of abcd, x in terms of abcd, y in terms of abcd, z in terms of abcd. So for that what I should do, I should draw the k maps. k map कितने बनेंगे इसमें बताओ मुझे, नंबर ऑफ k maps required 4 4, और हर एक k map कितने सेल का बनेगा 4 4 का, 4 सेल नहीं 16 सेल, 4 बिट होगा राइट। तो ये देखो आई 4 एम क्रॉस जस्ट 4 ड्राइंग 4 इट, क्रॉस 4 हाँ 4 क्रॉस 4, तो आई एम जस्ट ड्राइंग इट वन फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अब ये मैंने एम्प्टी गेम बना दिया। अब ऑन दिस एरो आई विल राइट लेट्स से w, तो इसका मतलब क्या है आई एम फोकसिंग ऑन दिस w। तो x y z को देखना है उस टाइम पे आपने, है ना। तो w का अलग बनेगा के मैप, x का अलग बनेगा, एक y का अलग बनेगा और एक z का अलग बनेगा राइट। So let's try to fill the w entries. अब w एंट्री देखो कहाँ कहाँ वन है, जस्ट चेक करो इस कॉलम में, यहाँ वन है, 2 3 4 5, है ना। तो जहां जहां वंस है वहां के मैप पे एंट्री कर दो वंस की। ये कौन सी लोकेशन है 5 6 7 8 9। तो 5 कहाँ होता है 0 1 0 1, यहाँ देगा 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7। 8 कहाँ होगा 1 0 0 0। 9 कहाँ होगा यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक है, इतना क्लियर होगा सबको। यस इसी सर तरह कैन यू एबल टू कंप्लीट द यस सर एक्स वाई जेड आल्सो, है ना। लेट मी शो यू। यस सर यस सर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा ना, सिंपल, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। लेट मी शो यू आउटपुट इफ ये देखो। अब इसमें एक चीज और बतानी थी आपको मैंने, हमने कल डॉट केस पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेट्स यस हैं, सर हमने 0 to लेके 9 तो स्टेट्स यूज कर ली क्योंकि दे आर द बीसीडी कोड्स। बट जो हमारे जब हम लेते हैं 2⁴ तो हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन बनते हैं, और हमने यूज कितने किए ओनली 0 to 9, 10 यूज नहीं किए ना हमने, 10 यूज किया 6 यूज नहीं किए, तो 6 आर नो सर अनयूज्ड स्टेट्स। वो कौन सी है 10 to 15, 10 11 12 13 14 15। तो उनको सब क्या लिया हमने, वी हैव टेकन एज डॉट केयर्स। देखो ये यहाँ पर 10 है हमारे पास, 10 11 12 13 14 15 राइट। तो ये हमने सब डॉट केयर्स कर दिए। अब इसके बाद करना क्या है, हमने सिंपल उनकी ग्रुपिंग करनी है। सो लेट्स शो यू। ये देखो 8 का ग्रुप बन गया, एक ये 4 का बन गया, एक ये 4 का बन गया। नाउ कैन यू गिव मी द आंसर फॉर दिस। ये W का आंसर क्या आएगा बताओ फॉर दिस 8 ग्रुप। सर ए सी कॉम्प्लीमेंट ए सी कॉम्प्लीमेंट किसका बोला आपने, ये 8 का। ये 8 वाले का 8 गलत वाले है, का गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपने 8 का बनाया इट मींस 8 का मतलब 2 की पावर 3, है ना। और एक कितना बड़ा के मैप है 2 की पावर 4 का के मैप है। तो इनकी पावर्स को माइनस करो, 4 - 3 कितना होता है 1। तो आपका आंसर सिंगल लिटरल आएगा, 1 उसमें एक लिटरल होगा, आपके दो नहीं होंगे। और वो क्या होगा देखो जरा ध्यान से, जो ये आपका थर्ड फोर्थ रो है बच्चे, इसमें देखो ए बी का स्टेटस देखो क्या है, अच्छा ए रहेगा सॉरी ओनली सॉरी ए रहेगा ना। ए रहेगा तो ये ओनली ए गलती नहीं करनी, रहेगा ठीक है। लेट मी इरेज दिस। ठीक है अगला बोलो, इस वाले का बोलो। लुक इनटू दीस टू, सेकंड एंड थर्ड रो, यहां से क्या मिलेगा बोलो। BD बी बी यहां से मिल गया और ऊपर बी से सी
सी, बी सी और इस वाले का, सी, रेड वाला जो 4 में मान रहा है, हाँ रेड वाले का बी सी आ गया है और ना, जो ब्लू वाला है उसका हाँ, और हाँ ब्लू वाले का बी डी आ गया। बीडी। बी टी आ गया। ऑल एग्री विद दिस? किसी को डाउट इसके अंदर? नो सर। ओके, लेट्स गो अहेड। ये है इनका भी, लेट मी erase. So this next is for the X. देखो X की ग्रुपिंग, इसमें दो ग्रुप्स बन गए हमारे 4 4 के, और एक ग्रुप बन गया हमारा पेयर का। सो इफ वी रीड इट, तो इट विल कमिंग आउट टू बी B bar C plus B bar D plus B C bar D bar. कोई ऐसा बच्चा जिसको रीड करने में दिक्कत है तो मुझे बता दो। सबको क्लियर है? सर बता दो एक बारी। ओके देखो, लेट्स, हमने मान लो इसकी बात करते हैं पहले, इस वाले पेयर की, ठीक है। अब इस पेयर में देखो कौन से रोज कौन से कॉलम्स आ रहे हैं। ये दो रोज आ रही है ना, और ये वाला कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब आपने जब रीड करना है, ये ध्यान रखना जो सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, चेंज का मतलब क्या है, 0 से 1 हो रहा है या 1 से 0 हो रहा है, उसको छोड़ देना है हमने, और जो चेंज नहीं हो रहा है उसको रखना है हमने। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, सेकंड थर्ड रो में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, 0 1 से 1 1 चले गए, तो 0 से 1 कौन सा बिट चेंज हुआ, ये चेंज हुआ ना, ये वाला ए बी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ से तो बी मिल गया मेरे को। और ऊपर क्या है, फर्स्ट कॉलम में है तो दोनों चेंज नहीं हो रहे, फर्स्ट कॉलम में सी और डी, पर दोनों की वैल्यू क्या है, 0 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी सी बार डी बार। क्लियर? अब इसका देखो, जो रेड वाला आपका 4 है, ये दो और ये ऊपर दो। नाउ फोकस ऑन दिस एंड दिस रो along with this and this column. तो पहले रो में देखो कौन सी बिट चेंज हो रही है, बताइए। 0 0 से 1 0 जा रहा है ना बच्चे, A is changing from 0 to 1, हाँ सर। but B will remain 0 to 0, तो यहां से B बार मिल गया मेरे को, ठीक है। और सेकंड और थर्ड कॉलम में जाओ, C is changing from 0 to 1, D remains 1 to 1, तो क्या मिल गया, D, तो इट्स B बार D। इसी तरह ये वाला देखो अब, ब्लू वाला, अगेन फोकस ऑन फर्स्ट एंड लास्ट रो प्लस थर्ड एंड फोर्थ कॉलम, नाउ इसको छोड़ दो, तो यहां से रो में से मुझे क्या मिला, बी बार मिला फिर से, और कॉलम में से क्या मिला, सी रिमेन्स 1 to 1, डी चेंजेस फ्रॉम 1 to 0, तो डी को छोड़ दिया मैंने, तो इट विल बी बी बार सी। क्लियर? चले आगे, हो गया क्लियर? कोई सर ये डाउट लास्ट वाला वापस बताना सर। लास्ट बार देखो ना हमने क्या किया, जो ये ब्लू वाला ग्रुप है, दो ये है, दो ऊपर वाले वन से, है ना। तो हमने क्या कहा कि फर्स्ट और लास्ट रो में कौन सा वेरिएबल चेंज हो रहा है, ए इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 1, तो लीव द ए, बी रिमेन्स फ्रॉम 0 to यस 0, सर। तो इट्स वैल्यू इज बी बार। अब थर्ड और फोर्थ कॉलम में देखो, ओके सी डी 1 1 से 1 0 जा रहा है ना, तो सी रिमेन सेम, डी चेंजेस, तो डी को छोड़ दिया, सी की वैल्यू 1 तो सी ले दिया हमने यहाँ। गॉट इट? ओके 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 सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो, ये अब बन गया मेरा वाई का, ये तो बहुत सिंपल बन गया। लाइकवाइज लेट्स सी फॉर जेड। जेड का आंसर क्या आएगा, डी। डी बार। डी बार, बिल्कुल ठीक बोला, डी बार। डी बार। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ, हमने जब के मैप बना दिया, के मैप बनाने के बाद हमारे पास 4 फंक्शन मिल गए, डब्ल्यू मिल गया, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, जेड मिल गया, राइट। अब इसको इंप्लीमेंट करना है हमने बस। अब देखो कैसे इंप्लीमेंट करना है इसको, दिखाया नहीं, लेट मी ड्रॉ इट, वेट, हाँ ये बना हुआ है।
देखो ध्यान से, इनपुट्स क्या दिए हमने, ए बी सी डी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आउटपुट साइड पे क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, देख रहे हो? तो हमने कैसे बनाया इसको, लेट मी टेक अ, हाँ, डब्ल्यू हमारे पास क्या है, ए प्लस बी सी प्लस बी डी, तो यहाँ पर बी कॉमन हमने ऐसे इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो अब मुझे पता है यहाँ पर प्लस है बीच में, तो इसका मतलब क्या कि एक और गेट नीचे आउटपुट मिलेगी मेरे को, है ना? तो मैंने यहाँ पर एक और गेट लगा दिया, देख रहे हो ये वाला और गेट नीचे वाला, तो ये और गेट वाला लगा दिया, राइट? अब उसके बाद क्या है, इसकी इनपुट्स क्या होगी, एक तो ए चाहिए मुझे इनपुट पे, और क्या चाहिए, बी इंटू सी प्लस डी, तो मैंने लिख दिया बी इंटू सी प्लस डी। टू ऑब्टेन बी इंटू सी प्लस डी मुझे क्या चाहिए, एंड गेट चाहिए, क्योंकि डॉट करना है मेरे को बीच में, है ना? तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया, जिसकी इनपुट क्या होगी, एक तो होगी बी और दूसरी क्या होगी, सी प्लस डी, C plus D. C plus D. है ना? अब सी प्लस डी कैसे मिलेगा मुझे, अगेन फ्रॉम और गेट, वो और गेट कहाँ है, ये देखो ये वाला और गेट, जिसकी इनपुट क्या है, एक सी है ऊपर है। और एक डी है, तो यहाँ से क्या डब्ल्यू आ गया। अब इसी तरह एक्स को देखो, यस सर। एक्स पे क्या चाहिए मुझे, 3 टर्म्स का सम चाहिए, है ना? तो इसका मतलब इसकी आउटपुट भी और गेट से आएगी डेफिनेटली, तो मैंने यहाँ पर एक और गेट लगा दिया, ये वाला और गेट। इस और गेट की इनपुट्स क्या लगा दी मैंने, अब आई प्लेस बी बार सी प्लस बी, क्योंकि मैंने 2 इनपुट और गेट लिया, अदरवाइज यू कैन ड्रॉ लाइक दिस आल्सो, कि आपका ये और गेट लिया आपने और आपने और गेट के 3 इनपुट लगा दी, एक लिख दिया बी बार सी, एक लिख दिया बी बार डी, तीसरा लिख दिया बी सी बार डी बार, ऐसे भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर जो इन्होंने बनाया सर्किट वो हमने लेके चले कि वी आर हैविंग ओनली 2 लेवल 2 इनपुट गेट, ठीक है, जनरली 2 इनपुट हमारे पास होता है, तो हमने इसको 2 इनपुट पे स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पर एक तरफ चला गया बी सी बार डी बार और एक तरफ चला गया बी बार सी प्लस बी बार डी। इसके लिए मुझे फिर फर्दर मुझे क्या चाहिए, एक एंड गेट चाहिए, जिसकी इनपुट क्या होगी, बी सी बार डी बार, तो बी यहाँ से आ गई, सी बार डी बार मैंने ऊपर से जनरेट कर लिया, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ सी डी आया था तो इसका बार किया, सी बार डी बार हो गया। तो जब भी आपने कोड कन्वर्टर बनाना है या कभी भी सर्किट इंप्लीमेंट करना है, इतना ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड पे जो आपने इनपुट्स दिए ना, ए बी सी डी, सारे कनेक्शन यहीं से उठाने हैं आपने, ये नहीं कि हर जगह बार बार एबीसी लिखते रहो, एक जगह एबीसी लिखा वहीं से सब कनेक्शन देने हैं जहां पर देने हैं आपने, और आउटपुट के ऊपर 4 आपके ऐसे आउटपुट की अपडेट पे आएगी। लाइकवाइज फॉर वाई, वाई क्या है, सी डी प्लस सी बार डी बार, तो वाई आपके पास क्या हो गया, अगेन प्लस है बीच में, तो एक और गेट लगा दो फटाफट पहले, उसकी इनपुट क्या होगी, एक सीडी होगी एक सी बार डी बार होगी, सीडी के लिए एंड गेट लगा दिया आपने, सीओडी इनपुट्स वो सीट पे आ गया। अब जेड क्या है, डी बार, तो डी से सिंपल कॉम्प्लीमेंट किया और डी बार निकल गया, खत्म बात। अब हम इसको समझते हैं कि क्या हमने ये जो बनाया है इंप्लीमेंट, ये सही भी है गलत है ना? आपके मन में आ रहा होगा सर हाउ टू वेरीफाई दिस, तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं एक बारी। नाउ कैन यू गिव मी जस्ट एनी वैल्यू ऑफ एबीसीडी, दो मुझे एबीसीडी वैल्यूज हो कोई, एनी एबीसीडी कोड बोलो। कोई भी बोलो। 1011 बीसीडी कोड बोलना है बच्चे, 1011 नहीं बोलोगे आप, बीसीडी कोड कहां तक होते हैं हमारे, 100 0 to 9. 0 to 9 होते हैं, तो 0 to 9 दोनों में जगह कोई 1001 1001, ठीक है। तो ये 1 हो गया मेरे पास, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब अगर ये 1 है और गेट, तो W क्या आएगा बताओ मुझे, और गेट पे एक भी इनपुट 1 होती है, आउटपुट क्या आती है, 0 क्यों होगा, 0 अरे भाई 1 और 1. गेट है, तो वन नहीं आएगी सीधे सीधे। ठीक अच्छा है, और और गेट में सॉरी एक 1 भी इनपुट 1 वन होती नहीं है, तो आएगी हमने सीधी दूसरी सीधी। इनपुट देखनी ही नहीं है, ठीक है। यस सर। अब लेट्स टॉक अबाउट x। अब x की इनपुट कहां से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दोनों में से एक भी हाई होगी तो आपकी x हाई हो जाएगी, है ना? तो अब यहाँ देखो इस एंड गेट को, इस एंड गेट इनपुट के एक 0 है b, वन आएगी। b 0 है, तो यहाँ तो 0 हो गया। लेट्स टॉक अबाउट दिस हाँ b कॉम्प्लीमेंट, 1 हो गया, 1 डॉट c प्लस d, COD क्या है 0 प्लस 1 1, तो ये क्या हो गया 1 1 आ गया। 1 यस अब सर। y देखो, y क्या है सी डी प्लस सी बार डी बार, c इंटू डी, 0 इंटू 1, और यहाँ पर क्या है
सी बार टी बार 1.0, तो यहाँ तो क्या आएगी बताओ मुझे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, सर 0 आएगा। जीरो आ गया। अब डी कितना है 1, तो डी बार कितना हो जाएगा, 0 तो ये मेरी आउटपुट होगी 1 1 1 1 0 0। ये कितना होता है देखो जरा, 12 होता है। 12 और होती ये है। कितना था, इनपुट क्या थी हमारी 9, 9 तो हो गया 3 एक्सटेंड plus 1 कन्वर्टर। इट यस मींस सर। जो मैंने ये कन्वर्टर बनाया ये मेरा BCD टू XS3 कोड है, कि अगर मैं कोई भी BCD इनपुट दूंगा तो मेरा ये सर्किट ऐसे मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, डिजाइन कर दिया कि मेरे को XS3 कोड ही ये प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आपने लैब में किया होगा फुल एडर, आता सर वो फुल एडर? हाँ सर। Yes, क्या yes. करता है फुल एडर बताओ मुझे फटाफट। सर 3 बिट्स को ऐड करता है, जिसमें जो थर्ड बिट होती है वो लोअर कॉलम से उसका कैरी होता है। तो आउटपुट्स में क्या आता है? सर इसमें तीन इनपुट होती है और 2 आउटपुट होती है। बिल्कुल ठीक, तो इसको इंप्लीमेंट करना है हमने, ये ऑलरेडी हम लैब में कर चुके हैं, तो आई विल जस्ट गो इट क्विकली। 3 इनपुट्स हैं A, B and C in, so carry from the previous lower significant position, so the two outputs are sum and carry, तो हमारे पास A, B, C in है and we're getting carry and sum, so 0 plus 0 you all know it's 0 and sum is 0 and carry 0, plus 0 कर दो तब भी 0 रहेगा, right? So यहाँ पर फोकस कहाँ होता है मेन हमारे पास, when we get more than or equal to 2 ones तब हमारा कैरी जनरेट होता है ना। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, फॉर दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन 3 ones, here 2 ones, 2 ones, so I am highlighting all those where we have generated a carry because the carry results from 1 plus 1 addition, so 1 plus 1 करेंगे तो कैरी हमारा जनरेट होगा और आंसर क्या होगा 0, sum is 0 and carry is 1, got it? तो अब देखो इसका ट्रुथ टेबल सर बट लास्ट में तो सर, हाँ बोलो। सर लास्ट में तो सर वो उसका, सर लास्ट में तो उसका सम तो 1 आया और कैरी भी 1 है। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 3 वंस है, मैंने तो यहाँ पर 2 वंस ऐड किए 1 plus 1 ऐड किया तो 1 0 आ गया, इसमें फिर 1 ऐड करो कितना बनेगा बताओ मुझे। सर 1 ही बनेगा वापस। 1 बनेगा। आप ऐसे देखा करो, देखो मैं सिंपल सा तरीका समझाता हूँ आपको, हम जैसे डेसिमल में ऐड करते हैं, हम कहते हैं 1 plus 1 कितना होता है 2 होता है, 2 plus 1 कितना होता है 3 होता है, ठीक होते हैं हम। अब बाइनरी में क्या है, बाइनरी में प्रॉब्लम ये है कि वी आर हैविंग ओनली 0 and 1s, तो जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 का लिखते हैं बाइनरी में 0 1 और 1, यस सर। और 2 plus 3 करेंगे तो मींस 2 plus 3 किया तो 2 से 2 plus 1 किया तो आपके पास क्या आ गया, सम 1, 0 plus 1 is 1 and carry remains 1, यस सर। तो 1 1 आ गया, यस सर। ठीक है, ओके सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके। अब देखो इसको भी वैसे ही हमने इंप्लीमेंट करना है जैसे हमने पहले वाला किया कोड कन्वर्टर वाला, तो सर बना लिया हमने पहले। सो एस एक आपकी आउटपुट इज 1 व्हेन एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1 और व्हेन ऑल द 3 इनपुट्स आर 1, और कैरी का 1 है जब 2 या मोर देन 2 वंस है हमारे पास, राइट? तो इसका देखो केमा बनाया हमने पहले, ये बनाया किसका हमने 1 1 1 1, राइट? दिस इज फॉर सम और कैरी, दिस इज फॉर सम। अब इसमें देखो ध्यान से, क्या इस केएमए में कोई ग्रुप बनता है? सब सर डायग्राम में है ना, स्टैंडअलोन्स का सब स्टैंडअलोन है। स्टैंडअलोन्स बनेंगे। सो हमने हर एक को अलग अलग लिख दिया, 4 टर्म्स लिख दिए हमने, ठीक है? तो दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चारों मिन टर्म्स आ गई हमारे पास। लाइकवाइज इफ आई ड्रॉ इट फॉर द कैरी, तो इस सम का हमारा सिंपल बना दिया हमने कि 4 एंड गेट लगा दिए, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो इनपुट चाहिए थी मेरे को ए बार बी बार सी इन, ए बार बी बार सी इन, फिर ए बार बी सी बार इन वो लगा दिया, तो अकॉर्डिंगली चारों इनपुट लगा दी,
सबको हमने सम कर दिया, और में डाल दिया, तो हमारा आउटपुट आ गई सम की, क्योंकि हमारे बीच में क्या लगा हुआ है, यहाँ प्लस प्लस लगा हुआ है। लाइकवाइज फॉर कैरी, अब कैरी में देखो ध्यान से, हियर वी आर गेटिंग 3 ग्रुप्स ईच ऑफ 2, राइट? तो 3 पेयर्स बन गए हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जो फर्स्ट वाला ये है, इसकी इट विल बी ए फ्रॉम दिस साइड एंड सी फ्रॉम अपर साइड, सो ए सी इन। इसका क्या आएगा? ए इंटू बी, और कॉलम वाले का क्या आएगा? बी इंटू सी इन, राइट? सो दिस कैन बी रिटन एज दिस, कि ए बी प्लस सी इन का कॉमन है ए प्लस बी। सो फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस, so we required 3 AND gates for this implementation and 1 OR gate. सर ये जो अभी वो- आपने ये बताया है ना सर, एक बार वापस बताना सर, वो कॉलम वाला। ये वाला, एक जी मिनट सर। एक मिनट। देखो, इस वाले कॉलम में अगर आप देखते हो, इस वाले कॉलम में बी और सी क्या है? 1 1, है ना? 1 1 और है इस, सर। हाँ, और इस ग्रुप की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो इस ग्रुप में ये इसी कॉलम में है, तो इसका मतलब ना बी चेंज हो रहा है ना सी चेंज हो रहा है, दे आर सेम, ओनली ए इज चेंजिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी इंटू सी। अब मैं अगर इस रो की बात करता हूँ, इस वाले की ग्रुप की, इसमें क्या है, यहाँ से ए आया मेरे पास, और ऊपर से क्या आ रहा है? सी इन, क्योंकि बी चेंज हो रहा है, बी 0 to 1, सी। बी को छोड़ दो, तो ए इंटू यस सी सर। इन आ गया। थर्ड ग्रुप की बात करता हूँ इस वाले की, तो इसमें क्या है? अगेन ए इज 1, ए इज नॉट चेंजिंग, बट हियर बी इज आल्सो सेम, सी इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 0, तो सी को छोड़ दो, तो ए इंटू बी आ गया इसका बस। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अब इसी को मैंने क्या लिख दिया? ए बी प्लस सी इन इंटू ए प्लस बी। यू कैन राइट दिस आल्सो, राइट? अब यहाँ पे देखो, देयर इज वन अल्टरनेट एक्सप्रेशन फॉर द कैरी। अब क्या होता है, जब भी हम फुल एडर जनरेट करते हैं ना बच्चे, तो फुल एडर जनरेट करते टाइम हम कहते हैं कि जो आपने इनपुट्स दी लेफ्ट साइड पे ए बी और सी, आपकी सम और कैरी जो आपके आउटपुट मिल रही है, दे शुड बी ऑन द वन पर्टिकुलर स्कीमेटिक, या हम जो एबिलिटी में ड्रॉ किया था। तो उस केस में क्या करते हैं कि जो हमने गेट यूज किए, एक गेट की आउटपुट दूसरे के लिए यूज होती है तो कर दो उसको, है ना? तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, वी हैव रिटन अल्टरनेट एक्सप्रेशन फॉर दिस, दैट इज ए बी प्लस सी इन इनटू ए एक्सऑर विद बी। Why I have written this? Let me elaborate it more. देखो ध्यान से, ए बी, हमारे पास है ए बी प्लस ए बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन, ये आया था ना हमारे पास। इफ आई टेक इट लाइक दिस, इफ आई डोंट ग्रुप इट, सपोज कि मैंने क्या किया, 2 स्टैंडअलोन ले लिए और एक ग्रुप बनाया मैंने। ये मैं क्यों कर रहा हूं? नॉट फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द के मैप्स, ये फॉर यूजिंग यूटिलाइजिंग द अपर सम इक्वेशन। वो कैसे? अगर मैं इस तरह से यूज करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? देखो, ए बी प्लस सी इन कॉमन लिया, ये क्या है? ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ये मेरा क्या होता है? एक्सोर गेट होता है। सो आई विल गेट ए बी प्लस सी इन ए एक्सोर विद। सो इफ आई यूज दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, तो बार बार देखो क्या हेल्प होगा इसका। आई कैन मेक द एक्सोर गेट रिटन लाइक दिस, कि हमने क्या किया, हमने एक फुल एडर लिया एंड वी हैव रिटन सम as A XOR with B XOR with C in। अब XOR कैसे आया? तो अगेन गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, जो ये सम की इक्वेशन थी ना, जस्ट टाइप टू क्लब टुगेदर द डिफरेंट टर्म्स। देखो जरा, फर्स्ट 2 टर्म्स में देखो कुछ कॉमन निकलता है? ए कॉम्प्लीमेंट। A complement, let's take out A complement outside, अंदर क्या बचेगा? B complement into C in plus B into C in complement plus बी नेक्स्ट 2 एक्सऑर टर्म्स में सी हो कुछ कॉमन जाएगा निकलता वो, है? ए। A कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा? B complement
B complement सीन कॉम्प्लीमेंट प्लस B इंटू सीन, यही मिलेगा ना। अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये किससे इक्वल है? XOR B XOR C XOR. सीन, सो आई कैन राइट A XOR into B XOR with C in, ये तो मुझे इसका मिल गया। Now let's talk about the other term. A into ये क्या बनेगा? B बार C बार प्लस BC XNOR. XNOR। XNOR क्या होता है? XOR का कॉम्प्लीमेंट होता है ना। तो आई कैन राइट दिस एज B XOR with C in का कॉम्प्लीमेंट, एक ही बात है। Yes sir. अब इसको, इस दोनों को देखो, A बार into B XOR with C, तो लेट्स टेक दिस एज X फॉर अ मोमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? X कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपके पास क्या बन गया? A बार into X प्लस A into X कॉम्प्लीमेंट, तो ये किस फॉर्म में हो गया बताओ मुझे? अगेन इन द फॉर्म ऑफ XOR गेट, A XOR X. A XOR X, और X में क्या लिया था मैंने? B XOR with C, so I can replace this as, so it will give me what? A XOR with B XOR with C. क्लियर हुआ? ये पॉइंट किसको नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताता हूँ। सर एक बारी वापस बताना सर ये वाला पॉइंट। दोबारा देखो, शुरू से बताता हूँ। ये जो सम हमने लिया था, हमने फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लिया A कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास ये आ गया। सेकंड जो पेयर लिया थर्ड फोर्थ वाला, इसमें से हमने A कॉम्प्लीमेंट लिया सॉरी, A कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास B बार C बार प्लस BC आ गया, राइट। फिर जो हमारे पास फर्स्ट पैकेट था उसको हमने लिखा इट्स B XOR with C, और सेकंड वाला क्या है? इट्स B XNOR with C। XNOR क्या होता है? XNOR is the complement of XOR। XOR. हमने क्या लिख दिया उसको कि B XOR with C का complement, and then we have taken X as variable which is equal to B XOR with C to make it simpler, look simpler, right? तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया मेरे पास? A XOR A बार X प्लस A X बार, ये बन गया। अब ये किस फॉर्म में आ गया? अगेन इन द फॉर्म ऑफ XOR गेट, so A XOR with X, और X मेरा क्या है? B XOR with C। So it means for a full adder, my sum equation is nothing but the XORing of all the three bits. Got it? चले आगे, क्लियर है ये? हाँ सर, यस सर, ओके, अब यस आगे सर। देखो, जो भी ये देख रहे थे आपका कैरी कन्वर्ट किया था हमने। अब हमने ये देखो, ये हाफ एडर यूज किया था, जिसमें हमने कहा था कि A B इनपुट्स है हमारे पास, आउटपुट क्या आती है? A XOR with B, और ये हमने हाफ एडर पढ़ा था पहले ऑलरेडी। अब हमने क्या किया? दो हाफ एडर को ज्वाइन कर दिया इकट्ठे। किस तरह से? देखो ध्यान से, कि पहले की जो आउटपुट थी, लेट मी राइट डाउन द आउटपुट्स। यहां पर क्या मिलेगी? A XOR with B, अगर A और B इनपुट है हमारे पास, ठीक है। और तीसरी जो C इनपुट है वो हमने कहां फीड करी? इस XOR गेट पे। इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी? ये मिल जाएगी, A XOR B XOR C. सब मिल गया मेरे पास। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरी। अब कैरी को हमने कैसे लिखा था? इस फॉर्म में देखो, AB प्लस C इंटू A XOR with B। अब A XOR with B तो यहां से मिल रही है इस पॉइंट से, तो हमने यहां से ये XOR B उठाया इस पॉइंट पे। देखो इसकी एंडिंग किसके साथ कर दी? C in के साथ। ये C in आ रहा है यहां से आपके पास, तो इससे आउटपुट क्या मिली यहां पर आपको? एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई विल गेट C in into A XOR with B। इसमें क्या ऐड करना है हमने? AB। तो जो हमारा हाफ एडर यूज किया था, ये AB हमने लगाया और आगे दिया, तो दिस विल यूज किया। तो जो ये वाली इंप्लीमेंटेशन है, ये किसको बोलते हैं? इंप्लीमेंटिंग फुल एडर यूजिंग हाफ एडर।
क्या मतलब है कि मान लो मेरे पास एक हाफ एडर सर्किट बना हुआ है ऑलरेडी, अगर मुझे हाफ एडर से फुल एडर कन्वर्ट करना है तो बजाय कि सब कुछ चेंज करने के, सारे गेट चेंज करने के, आई कैन स्ट्रेट में डू इट विद द हेल्प ऑफ टू हाफ एडर्स अलोंग विद द एक्स्ट्रा और गेट। तो जो हमने पहले इंप्लीमेंट किया है पिछले साइड में वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। बोथ आर फुल एडर्स ओनली। ये वाला देखो ना, दिस sum and carry, this is also a full adder, but ये full adder using basic gates है। जो अब आपको full adder दिखाया मैंने, that is using the two half adders and an OR gate। क्लियर होगा? किसी को डाउट कोई भी माइंड में तो बताओ मुझे। नो सर। क्लियर full adder? यस यस सर। सर। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज बाइनरी एडर। इसको बोलते हैं रिपल कैरी एडर। सब इसको ध्यान से समझो क्या है। बाइनरी एडर एड्स टू मल्टीपल बाइनरी नंबर्स। अभी तक हमने जो पढ़ा था, या तो हमने 2 बिट ऐड किए थे या हमने 3 बिट ऐड किए थे। 2 बिट ऐड करने के लिए हमने यूज किया हाफ एडर, 3 बिट के लिए हमने क्या यूज किया? फुल एडर, राइट। अब जो बाइनरी एडर है जो हम यूज कर रहे हैं, इट इज यूज्ड टू ऐड टू मल्टीपल बिट बाइनरी नंबर्स। तो इसमें क्या होता है? इट हैज फुल एडर्स कनेक्टेड इन कास्केडेड फॉर्म। कास्केडेड का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कास्केडेड? सर नहीं पता। नहीं पता? ओके, नो इश्यूज। देखो कास्केड का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये फुल एडर है 1, दूसरा फुल एडर है 2, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट की तरह ऐड कर रहा। इसको बोलते हैं हम कास्केड कनेक्शन। जैसे कहते हैं सीरीज में कनेक्शन लगा दिया तो एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बने, तो इसको बोलते हैं हम कास्केडिंग, राइट। अब देखो इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम। इंटरवेंशन ऑफ 4 full adders, let me erase this. Interconnection of 4 full adders shown below provides a 4-bit ripple carry adder. Carries are connected in the chain and S output generates the sum bits. Let's try to understand. This type of adder is also called ripple carry adder. Ripple का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं waves। तो कैरी आपका रिपल की तरह फॉर्म कर रहा है यहाँ पर, जो आगे एड ऑन होता है फर्दर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, हमने क्या किया है? हमने फुल एड्रेस यूज किए हैं। देख रहे हो नीचे वाले फिगर में? ये आपके फुल एड्रेस यूज कर रहे हैं। अब जो पहले का कैरी आ रहा है वो इसमें फीड किया। अब जो पहले फुल एड्रेस की आउटपुट आई उसका कैरी नेक्स्ट में फीड किया। तो यहाँ पर कैरीज आपके एड ऑन हो रहे हैं। सो फॉर एन n bit adder it requires n full adders with carry connected to the next higher order full adder. The bits are added with full adders starting from the least significant position to form the sum bit and the carry bit. Input carry C naught at least significant position must be 0. So क्या मतलब है इसका कहने का कि जैसे हम करते हैं ना सिंपल अपना डेसिमल में एडिशन। लेट मी टेक एन एग्जांपल। सपोज हम जैसे डेसिमल में ऐड करते हैं 352 में ऐड करना है मेरे को 257। So how, from where we start? We start from the LSB. 7 plus 2 9, then 5 plus 5 10, 0 carry add आगे इधर आ गया। So likewise for here also, आपका जो इनिशियल सबसे पहले है जो LSB है आपका कैरी, LSB फुल एडर का, वो कैरी हमने क्या लिया? स्टार्टिंग में 0 लिया, ठीक है। तो अब जो भी नंबर दिया, जैसे आपको ये दिया हुआ बिट A और बिट B, देख रहे हो 1101 और 0101, इसको आपने ऐड करना है। तो ये 4 बिट नंबर है, ये भी 4 बिट नंबर है। तो अगर मुझे 4 बिट नंबर को 4 बिट नंबर से ऐड करना है तो उसके लिए मुझे 4 बिट रिपल काउंटर चाहिए होगा, बाइनरी रिपल काउंट कैरी ऑर्डर, राइट। तो वो कैसे होगा? तो फॉर दिस we'll take initial carry as 0 and we'll just add 1 plus 1 gives you what? 0 and carry as 1। तो कैरी आउटपुट कितना गया? 1 गया। अब तो ये कैरी आउटपुट है, ये कहां जा रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ कैरी इनपुट फॉर द नेक्स्ट फुल एडर। तो ये कैरी जो आपका था ये यहां चला गया ऊपर 1। अब
नेक्स्ट बिट को ऐड किया, 0 + 0 0 + 1 कैरी गिव्स यू 1। अब यहाँ पर कैरी जनरेट क्या हुआ 0, तो ये 0 आगे चला गया, देख रहे हो। फिर नेक्स्ट इनपुट क्या थी 1 + 1, इट इज 0 with 1 कैरी एंड सम इज कैरी वाज 0 इनिशियली, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इट इज 0 with 1 कैरी and now this carry is acting as an input to the next full adder. Here 1 + 1 0 and with 1 carry out. So carry out is 1. So this is the way how we are going to add the two 4-bit numbers using a 4-bit binary ripple carry adder. इसमें कोई डाउट किसी को प्लीज टेल मी, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हमने सिर्फ 2 LSB से स्टार्ट करना है, ये दिमाग में रखना है, LSB से स्टार्ट होगा, इनिशियल कैरी आपका 0 होगा, राइट, जो आपका LSB भी होगा। फिर जब कैरी जनरेट होगा, चाहे 0 है या 1 है, वो नेक्स्ट आगे उस बिट पे चल जाएगा फॉरवर्ड, बस। इज इट क्लियर? यस सर। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन मतलब इसका एडवांटेज क्या है, देखो जब आपने सर टाइम हो गया सर। टाइम हो गया, ओके चलो स्टॉप करते हैं बस अभी। ये देखो ये वाली फिगर, जो हमारे पास ये फिगर सामने शो कर रखी है, अब आप कोई भी 4-बिट नंबर दो, आप उसको इजीली उसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो हमने सर्किट बनाया फुल एडर का, आपने अभी फुल एडर पढ़ा था हमने, तो फुल एडर का यूजिंग XOR गेट से बनाया, यूजिंग हाफ एडर से बनाया, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका वो वही रहेगा। आप जो भी इनपुट्स दोगे अकॉर्डिंगली वो प्रोसेस करेगा और आपकी आउटपुट देगा। तो इट मींस इट्स अ वन टाइम जॉब। आप एक फुल एडर बना लो, अगर बना सकते हो जैसे हार्डवेयर में या मल्टी सिम में, वहीं कहीं पर भी, और उसको जितनी बार आप कास्केड करोगे उतने बिट का आपका बाइनरी रिपल कैरी एडर बन जाएगा। 2 करोगे तो 2 बिट बनेगा, 3 करोगे 3 बिट बन जाएगा, 4 करोगे 4 बिट बन जाएगा, एंड सो ऑन। क्लियर? सर रिपल का मतलब क्या हुआ? लाइक रिपल का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? वेव होती है ना, हाँ सर। तो पहले के जो कैरी है वो अगले में फ्लोट हो रहा है, दूसरे कैरी तीसरे में जा रहा है, तीसरे कैरी चौथे में जा रहा है। ओके सर। ठीक है? एनी अदर डाउट? नो सर। So in binary adder, the first full adder can be replaced with a half adder, and also a no carry is expected. Binary adder means 2 bits क्लिक करना है, so we stop here only. ठीक है?